Yes, ma'am. अरुमिता, Present, ma'am. आर्यन सिन्हा की तो आ रही थी वॉइस। भव्य मिश्रा, Present, ma'am. भव्य मिश्रा, Present. दिशिता, Ma'am. दिशिता, Present, ma'am. दिशिता माइक वर्क कर रहा है ना आज? ऑन रखो, 2 मिनट बेटा। Yes, बात ma'am. करती हूँ तुम्हें इतनी जल्दी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है इतनी जल्दी अपने आप को म्यूट करने की? दिशिता, Yes, ma'am. कैमरा ऑन करो अपना। Ma'am. एंड डोंट गिव मी एनी, कोई भी लॉजिक मत देना कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और अनम्यूट रखो अपने आप को, जब तक मैं नहीं बोलूंगी म्यूट नहीं करोगे। देवांश, Present, ma'am. मेरे क्लास चल रही है। ओके, हिमांशु, Yes, ma'am. दिशिता, मैम मैं एक सेकंड सेट कर। ठीक है, कैमरा ऑन होना चाहिए सबका। ऑल ऑफ यू ऑन योर कैमरा। लक्ष्य, जयंत, Yes, ma'am. कनक, Present, ma'am. शाश्वत, Present, ma'am. श्रेया। Present, ma'am. श्रेया, व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? अनम्यूट करो श्रेया। Ma'am, do I have to tell? यस आकांक्षा, यू टेल मी। Ma'am, it says that the negative part of the added molecules gets attached to the carbon atoms, which has less number of hydrogen molecules. ओके, वेरी गुड। श्रेया, Yes, ma'am. व्हाट इज मार्कोनिकोव्स रूल? Ma'am, during addition reactions across unsymmetrical alkenes, the negative part of the attacking reagent goes to the carbon of double bonds having lesser number of atom numbers. श्रेया, Hydrogen वेरी atoms. गुड। श्रेया, कहाँ से रेड किया? कॉपी से या बुक से? Ma'am, copy. कहाँ से? कॉपी से। ओके, इट मींस यू आर राइटिंग इन द कॉपी। चलो, सिद्धार्थ सेमवाल, सिद्धार्थ सेमवाल। Yes, ma'am. Siddharth, what is anti-Markovnikov's rule? And please keep your cameras on. Siddharth Sehwal, what is anti-Markovnikov's rule? Yes, can you tell me what is anti-Markovnikov's rule? I'm sorry, I can't recall right now. Okay, show me your copy, classwork copy, where you have written, just point it towards the camera. Ma'am, I'm not on mobile right now. Ma'am, can I send it to you after the class? Are you maintaining your copy? First tell me this thing. Yes, ma'am. Ma'am, Okay, I'm read doing the it in rough, ma'am. Why rough? Why a rough copy? Why you have not made a fair copy? Tomorrow I will be seeing your copy and it should be a proper register. Okay, ma'am. Okay, all of you have to maintain a proper register. न्यू रजिस्टर, ये नहीं कि रफ वर्क चल रहा है अभी तक तुम्हारा, या जो भी तुमने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। सिद्धार्थ, एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। यू हैव नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री, सो आई वांट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम यू। Okay, ma'am. Okay. Okay, so I am just giving a brief recap. Yesterday I told you about Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule. Yes or no? And in the case of, this is written on the blackboard, I am again giving a recap. In the case of anti-Markovnikov's rule, I told you that it takes place in the presence of HBr plus peroxide. Both of them together are required. अगर जैसे केवल HBr है, peroxide नहीं है, तो which rule will be applicable? Aishwarya, if only HBr is there, peroxide is not there, which rule will be applicable? Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. But if I am taking HBr plus peroxide, generally what I am taking is the benzoyl peroxide, then anti-Markovnikov's rule is applicable. Is it okay? And
What is the main step in the mechanism of the Markovnikov screw? Which is the main step? Yes, Lakshmi. Who can tell me which is the main step in the mechanism of the Markovnikov screw? What is the main step? Addition of hydrogen. Addition of hydrogen resulting in the formation of carbocation. The main step involves the formation of carbocation, and I told you that 3-degree carbocation is most stable. Is it okay? Clear? Okay, Shreya. If I am taking in this compound, या revision में बाद में लेते हैं, guys में लेते हैं. Okay, let me now tell you the mechanism of anti-Markovnikov screw. This is the order of stability of carbocation. First, I am taking the mechanism of anti-Markovnikov screw, then I will be proceeding with both questions. Okay? Anti-Markovnikov screw. Now, in the case of anti-Markovnikov screw, suppose I am taking this compound and I am adding this HBr plus benzoyl peroxide. The structure of benzoyl different chemistry is this group. C6H5C double bond O. This group is called as benzoyl group. So benzoyl peroxide means there are two C6H benzoyl group. और इनके बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. ठीक है? So this is the formula for benzoyl peroxide. Okay, so this is the formula for benzoyl peroxide. Is the point clear? Now, Yes, ma'am. Okay. Now, what will be the product form, Shreya? Can you tell me? What is it according to anti-Markovnikov rule? Where will H go and where will Br go? Shreya? Ma'am, the negative part will go to C atom. CH or CH2? CH2. The negative part is going to this carbon atom, which is having the more number of hydrogen atoms. It is reverse of Markovnikov rule. So what I am getting is this as the major product. So this will be my major product. Plus what we are getting is the minor product. Minor में opposite हो जाएगा. So this is the minor product. Now in the mechanism of anti-Markovnikov rule, my first step is the formation of a free radical. What I am getting is a free radical. Okay. Now HBr is quite photosensitive. So in the presence of sunlight or in the presence of peroxide, it breaks into ions. Just wait. Okay. So first step is that when we are taking benzoyl peroxide, C6H5, step 1 is formation of free radical. Step 1 is formation of free radical. So I am telling you how a free radical is formed. So if I am taking a C6H5C peroxide, ठीक peroxide जो होते हैं वो HBr को free radical formation में help करेंगे. So in the first step, it converts into its ions. How it is converting it is into free radical. See, this यहाँ पे free radical तो मतलब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, homolytic fission. Okay, so what we are getting is two molecules of benzoyl radical. Are you getting the point? It is breaking from here between two oxygen atoms. So C6H5C double bond O radical. Same here. So what we are getting are the two molecules of radicals. Now this is quite unstable and carbon dioxide will be lost. And what we are getting is C6H5 radical, which is called as phenyl radical. So what we are getting is a phenyl radical.
Is the point clear? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you explain once again? Yes. See, this is my benzoyl radical. Benzoyl का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए C6H5 C double bond O. अब ये peroxide linkage, this linkage is the peroxide linkage when two oxygen atoms are together. So this is my peroxide linkage. अब homolytic fission का क्या मतलब होता है? एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन. So both these oxygen atom जब यहाँ से break हुआ तो C6H5 C double bond O. इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे के पास दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ गया. So what we are getting are the two molecules of this radical. Now यह quite unstable है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो जाएगा. So what we are getting is C6H5 radical and carbon dioxide is removed, and this is called as phenyl radical. Is it okay? Now what happens further? आपका पहले फिनाइल रेडिकल बन गया. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो आपका फिनाइल रेडिकल है, आई टोल्ड यू कि पर्पस है कि HBr ब्रेक हो जाए. दिस फिनाइल रेडिकल विल कंबाइन विद HBr. अब HBr का भी ऐसे ब्रेक होगा. एक बॉन्ड में क्या मतलब है? दो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वन बॉन्ड मींस टू इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेक हो गया. ठीक है, अब ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन हो गया, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज C6H6 plus Br radical. So what we are getting is the Br radical. So this is my step 2. This HBr is breaking into two parts, H radical and Br radical. H radical will combine with C6H5 radical. What we are getting is C6H6 plus Br radical. Clear? Now what? Yes, step 3. Now, in the case of step 3, if I am taking this compound, जो आपका alkene था, now it will combine with a Br radical. अच्छा, what is the stability of free radicals? Which free radical is more stable? Third degree. 3D. Okay. अब यहाँ पर दो possibilities हैं in this case. या तो Br इसके साथ, अच्छा एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? दो इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन. अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो यहाँ पर Br कंबाइन हो गया. अगर Br यहाँ कंबाइन हो गया तो क्या होगा? CH3 CH Br, यहाँ पर आ गया CH2 रेडिकल. ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ करके, मतलब लिखना ऐसे नहीं होता. लिखने में तो आप सिंपली डबल बॉन्ड दिखा के लिखते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ. एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है? दो इलेक्ट्रॉन. एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है. तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है, अब अगर Br रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर दिया तो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज CH3 CH Br, यहाँ पर बच गया CH2 रेडिकल. इज द पॉइंट क्लियर? नाउ व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? मैम बोर्ड का थोड़ा टॉप नहीं दिख रहा है. ओके, मैम अभी भी हल्का सा है जो नहीं विजिबल है. ये पोर्शन टॉप वाला. यस मैम, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, Yes, सही से नहीं ma'am. दिख रहा है. अब देखो. नहीं मैम, बहुत छुप मैम गया. तो ऊपर की पूरी लाइन ही ढक गई. अच्छा अच्छा, रुको मैं करती हूँ. Now I think it's visible. यस मैम, अब सही है. Yes, ma'am. Okay, so what we are getting is CH3 CH Br, यहाँ पर आ गया प्लस. What will be the other possibility? इसके साथ ऐड हो गया Br, तो यहाँ पर आपका आ गया CH3 CH CH2 Br. ठीक है, एक बार Br अगर इधर ऐड हो गया तो यहाँ पर रेडिकल बच गए, यहाँ पर भी ऐड हो सकते तो इधर रेडिकल बच गए. नाउ ये कौन सा रेडिकल है? दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल. The carbon atom 1 degree है, and this is 2 degree. This carbon atom में there are two methyl groups. Now which is more stable out of 1 degree and 2 degree? 2 degree. 2 degree. 2 degree. It is the more stable. ठीक है, तो बेजर प्रोडक्ट आपको किससे बनेगा? 2
2 2 degrees. degree. रिएक्टेड कार्बन की डिग्री 2 निकाल degree. 2 degrees. So in the next step, in the step, रिएक्टेड कार्बन की डिग्री निकालनी है ना. हाँ, जिस कार्बन के साथ रेडिकल है उसकी डिग्री निकाल रहे हैं. दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल. यानी ये जो कार्बन एटम है इसके साथ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल. Now this carbon atom is attached to 2 carbon atoms, so this is 2 degree free radical. And what we know is that 2 degree free radical is more stable from the previous chapter of organic. Okay, so now in the step 4, if I am taking this compound, it is 1 degree से आपने लिया, it's 2 degree आपका है, this is more stable. Now if this compound is combining with HBr, what we are going to get? If this compound is going to combine with HBr, what we are going to get? 2 degree ज्यादा स्टेबल है ना, यही HBr के साथ कंबाइन करके Br पहले ऐड हो गया तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा H. So what we are going is CH3 CH2 CH2 Br plus Br radical. So this is what we are going to get. CH3 CH2 CH2 Br plus Br radical. So this is obtained as a major product. क्योंकि आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल फ्री रेडिकल से बनेगा. एंड व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट? सेकंड वन, इज इट ओके? सो दिस विल बी माय मेजर प्रोडक्ट एंड इन द माइनर प्रोडक्ट जो आपको कम स्टेबल था 1 डिग्री से, ये आपका लेस स्टेबल था. So if this is combining with the HBr, H add हो गया तो CH3 CHBr CH3 plus Br radical. So this will be obtained as a minor product. Okay. So mechanism अगर आपका आएगा तो it can come for 2 marks, and what you all know is that your term to be subjective. So you have to do the mechanism properly. Clear? Okay. Now, before I am proceeding further, should I take the addition reactions of alkynes simultaneously or बाद में कराऊं? What do you suggest? पहले पूरा alkenes करा दूं, then I should come to alkynes, और साथ साथ करा दूं? हम बाद में. मैम पहले एल्केन्स खत्म करा दो मैम. Okay, 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 ठीक है. So addition, you can open your NCERT if you have. Otherwise, just bring the chemical properties. Mein I have done addition of hydrogen, halogens, HCl, Markovnikov rule, then anti-Markovnikov rule, addition of sulfuric acid, addition of water. Till here we have covered. Now 3 reactions are left that I am taking. Next reaction is oxidation of alkenes. So जब का alkenes भी हो जाएगा, alkynes भी हो जाएगा. Okay. Now what we are going to do is the oxidation of alkenes. What is the meaning of oxidation? What is the meaning of oxidation? Ma'am, addition of oxygen. Loss of electron. Hydrogen. Loss of Addition of electrons. oxygen, removal of hydrogen. Removal of hydrogen and addition of oxygen. Yes, very good. I am talking in terms of oxygen. So oxidation means addition of oxygen. Okay. Now depending upon the reagent used. So first is oxidation with dilute KMnO4. Dilute aqueous KMnO4. Aqueous means important. And this dilute KMnO4 is called as Bayer's reagent. Dilute KMnO4 is called as Bayer's reagent. BAE होगा. BAE. It is called as Bayer's reagent. Okay. Now,
if I am taking is the alkene, ये आपके 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है. If I am reacting with dilute KMnO4 in water obviously and the temperature is 273 Kelvin. So now what is happening? Most of the reactions में आपका pi bond break हो जाएगा. So pi bond will break and what we are getting is a single bond. अच्छा dilute KMnO4 का क्या मतलब है? I have already told you please KMnO4 in the presence of water. ठीक है. और KMnO4 oxidizing agent है, it gives out oxygen. Oxidation means addition of oxygen. So from where I am getting is oxygen from KMnO4. So KMnO4 से I am getting is oxygen. और साथ में water भी है. यानी I have got 2 oxygen and 2 hydrogen. So they are adding up in this way. So it is called as ethane 1,2-diol. These compounds are called as diol. Are they vicinal और जेमिनल? आपको कल बताया था विसिनल और जेमिनल में कुछ? मैम विसिनल. Vicinal means adjacent carbon atom. So these are called as vicinal diols. Vicinal means adjacent. Okay. Now if I am suppose taking this compound and again what I am adding is dilute KMnO4 at 273 Kelvin, heat नहीं करना है. What we are going to get? Yes. What we are going to get? Ma'am, CH3, CHOH and CH2OH. CH3, CHOH, CH2O. Okay. So first is oxidation with dilute KMnO4. So it is very simple. Double bond with the pi bond will break and 2 of the OH will add. Next is oxidation with aqueous or alkaline. Acidic के साथ ये acidic कर लो. Oxidation with acidic KMnO4. Acidic means in the presence of H+. Oxidation with acidic KMnO4. Now if we are doing the acidic KMnO4, now this is very important point. If I am taking suppose this compound, अब acidic में ये पूरा bond यहाँ से break हो जाएगा. This bond will break down. Okay. In acidic, this bond will break down. Now you have to keep in mind, अगर आपका इस तरह से ग्रुप है, डबल बॉन्ड के पास दो जो कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये पोर्शन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में. If the group is like this, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड है उसके साथ अगर एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, then this portion is converted into carboxylic acid. मैं इधर से लिख रही हूँ थोड़ा सा. If it is like this, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है, so this portion is converted into COH group. So what we are getting is RCOH group. Number of carbon atoms remain same. कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड, जो जिस भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उस कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन एटम है कार्बन डाइऑक्साइड, केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, you can see this carbon atom, 2 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 1 हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, no hydrogen atom. This carbon is having no hydrogen atom. So this portion is converted into a ketone. This point you have to remember. अब मैं इसकी एप्लीकेशन समझा रही हूँ. Now you see that these Ma'am, two can you tell once again? atoms have a double bond. ऐसा नहीं कि किसी भी साइड अटैच है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है. ये सुनो, डबल बॉन्ड बिटवीन these two carbon atoms. इसके साथ भी डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड है. लेकिन आप इधर देखो, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? एक. और अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में. अब इसके साथ देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है. अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक. यहां से ब्रेक हो जाएगा. अब ये पोर्शन आप देखोगे, इस पोर्शन के अंदर इस कार्बन जिसका डबल बॉन्ड है, इट इज अटैच्ड ओनली टू 1 हाइड्रोजन एटम. तो CH3,
अगर वन हाइड्रोजन एटम हो तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, ये CH किस में कन्वर्ट हो गया COH में प्लस यहाँ पर एक ही कार्बन एटम था, एक दो हाइड्रोजन से इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2. Is the point clear? When we are Yes, getting ma'am. KMnO4, practice करिए बेटा organically in the presence of H plus. KMnO4 in the presence of H plus. Now suppose I am taking you this example. I am reacting it with KMnO4 in the presence of H plus. क्या होगा बताओ? सबसे first thing we are seeing these two groups. Double bond break हो जाएगा आपका. One is this group, other is this group. We are seeing this carbon atom. अच्छा ये वाला किस में कन्वर्ट होगा? इसके साथ तो कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है. So this is converted to अच्छा जिस कार्बन से दो कार्बन एटम्स अटैच होते कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ से देखो दिस केस इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मैम केटोन. कीटोन. वेरी गुड आकांक्षा. हाँ जी कौन सा कीटोन बनेगा? समवन एल्स टेल. हिमांशु यू टेल मी. कनक आप इसका इससे बताओगे. प्लीज हिमांशु टेल मी फ्रॉम दिस. Ma'am, propanone. Yes. So what I am getting is CH3 C double bond O CH3. Okay. अब इससे क्या बनेगा कनक? मैम CH इसका मैम कार्बोक्सिलिक एसिड. Yes. So what will be how many? C2H5 से start करते हैं हमने कहा. This plus C2H5. CH से बन गया COOH. Okay. C2H5 CH is converted into COOH. Is the point clear? Okay. One more example. Just for your practice. If I am taking this compound. Yes. Siddharth, Sayam, Bhavya, tell me the product. First one. If I am reacting with dilute KMnO4, what will be the product? At temperature of 273 Kelvin. If I am reacting this compound with dilute KMnO4. मैम CH3. मैम CH3 CH उसके साथ OH और CH3. सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया और दोनों के साथ एक OH आ गया. यस और नो? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नाउ विद एसिडिक KMnO4. इसमें आपको बताया था कि दिस पोर्शन विल ब्रेक डाउन लाइक दिस. दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया फर्स्ट. नाउ टेल मी. यस. क्या होगा इससे? Double bond O. डबल बॉन्ड O प्लस Propanone. CH2 से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बन जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से प्लस वाटर. ठीक है. यहाँ पर भी लिख सकते हो प्लस वाटर. ओके. कल मैं शॉर्ट ओरल टेस्ट लूंगी फ्रॉम एल्कीन्स. अच्छे से पूरा एल्कीन्स करना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एल्कीन्स ही है. ओके. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू is the next reaction. Again a very extremely important reaction. 12th में भी इसकी applications आ जाती हैं. इसके दो मेथड बताऊंगी. डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड आपको समझा दूंगी और एक पूरा स्टेप. नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस.
Ozonolysis means addition of ozone in the presence of water. Ozone means O3 in the presence of water. Okay. Now in the first step, if I am taking suppose this compound alkene, first step I केवल ozone add करूँ. Now when we are adding is ozone, both the bonds break down, दोनों bonds break down हो जाएंगे. ठीक है, और ozone add हो जाता है. CH2 CH2. Now how? Can you please repeat the meaning of ozonolysis? Ozonolysis means addition of ozone. Ozonolysis means addition of ozone. ठीक है? Now how the ozone adds up? In the first step, both the double bonds break down. दोनों अलग अलग होते हैं. यहाँ आ गया CH2, यहाँ पर भी आ गया CH2. अब ओजोन कैसे ऐड हुई? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया था, जिसका तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो ओजोन एड्स लाइक दिस. ओजोन मींस 3 ऑक्सीजन एटम्स. एक ओजोन ने दोनों कार्बन को कंबाइन कर लिया, तो दिस टाइप ऑफ 5 मेंबर रिंग बन गए. 1 2 3 4 5. देयर आर 5 एटम्स इन द रिंग. What we are getting is this compound. It is obtained as an intermediate. इसको हम जनरली बोलते हैं ओजोनाइड. You need to for iodine name. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आपको ब्रेक हो जाएगा. ये पोर्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया. तो when I am reacting it with zinc and water, ये आपका पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया. दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया. यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, तो ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया. ठीक है. अब जब ये दोनों पोर्शंस अलग हुए तो व्हाट आई एम गेटिंग इज CH2 डबल बॉन्ड O. अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड O को मैं कैसे लिख सकती हूँ? CH2 डबल बॉन्ड O में C डबल बॉन्ड O और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम. व्हाट इज दिस कंपाउंड कॉल्ड एज? मिथेनॉल. एल्डिहाइड. मिथेनॉल. फॉर्मेल्डिहाइड. कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल. एल्डिहाइड होता है ना CH2 ग्रुप. एल्डिहाइड ग्रुप में having 1 कार्बन एटम मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है. तो ये पोर्शन में आपका ऐसे ब्रेक हो गया, इसके साथ भी ऑक्सीजन था, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, दोनों सेम थे. इससे भी आगे CH2, इससे भी बन गया CH2. ये ऑक्सीजन अपनी हट गई, वाटर के साथ कंबाइन हो गया CH2. इस पे नहीं फोकस करते हो. ये दिस इज आई हैव टोल्ड यू स्टेप वाइज. अब इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट में कुछ भी नहीं है. अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिखूं, इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, एग्जाम में अगर आपको 1 आता तो सिंपली आगे बढ़ के प्रोडक्ट फॉर्म ओजोन के साथ रिएक्ट किया, सेकंड स्टेप में जिंक प्लस वाटर. यहां से ब्रेक हो गया, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, तो यहां आगे C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे प्लस CH2. कैसे होगा? अच्छा, इसको CH2O आप लिख रहे हो, बट इट इज एक्चुअली मिथेनॉल. HCHO. CHO ग्रुप बना. So either I can write it like this, or shortcut method जिसको ये प्रॉब्लम आती है, they can do like this. मैम जो लास्ट में H2O2 बचा है वो बचे हुए ऑक्सीजन के साथ जो मिला है H2O. ये ऑक्सीजन जो बच गया था ना, इससे वाटर कंबाइन करके H2O. एंड इफ यू रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फालतू के प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान मत दो. ठीक है. मेन प्रोडक्ट आपको लिखना आना चाहिए. फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रैक्टिस इज जस्ट द मेन प्रोडक्ट्स. उसके बाद फोकस कर सकते हो. Okay. Now let's take more example. Revolve question भी आते हैं, बाद में करते हैं. If I am giving you these compounds, question is write products of ozonolysis of. पहले मैं आपको डायरेक्ट बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. फर्स्ट पार्ट, But2E. What is But2E? Aman, what is But2E? बोलो फॉर्मूला बोलो. मैम CH3 नहीं CH2 नहीं CH3
मैम सेकंड पे होगा बस डबल बॉन्ड सेंटर में CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस विल बी यस मैम। अगर आप कॉपी भी लिखते ना साथ साथ, अपन कॉपी खुली भी है साथ साथ। यस मैम खुली हुई है। ठीक है, तो कॉपी में फटाफट लिख के देख लिया करो, तो आप हाइड्रोजन में गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अमन, अब आप ही बताओगे पहले कैन यू टेस्ट द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। डायरेक्ट में कैसे लिखूंगी? अगर मेरे को ओजोनाइट नहीं बनाना, हाउ कुड आई राइट द डायरेक्ट प्रोडक्ट? इसमें देखो क्या हुआ था, डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, यस और नो अमन? यस मैम यस मैम। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक ऑक्सीजन इसके साथ लगी, एक इसके साथ लगी, ऐसे दिखाया था हमने। यस मैम। CH3 दो वो बन जाएंगे। CH के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यस मैम, एक ऑक्सीजन दोनों। CH3CHO। अच्छा, मैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है ना, कैन यू शो लाइक दिस, ऐसे दिखा दो। या यस मैम। तो नहीं समझना है, मैं राइट में CH3CHO, लेकिन मैंने बॉन्डिंग दिखा दी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये भी सेम बनेगा। यस और नो? यस सेम बनेगा। ठीक है, ये तो मेन प्रोडक्ट है। कैन यू ड्रॉ द ओजोनाइट इंटरमीडिएट बना सकते हो? व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट? मैम एक मिनट। Try in your copies, all of you try in your copies. जितना अपने हाथ से ट्राई करोगे, बेटर विल बी द रिजल्ट्स। मैम सेम ही होगा फॉर्म। फॉर्म से बस दो दो कार्बन होंगे दोनों साइड CH CH। CH डबल बॉन्ड हटा दिया, CH CH3। ठीक है, यही होता है ओजोनाइट। ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज ओजोनाइट, डबल बॉन्ड हटा दिया। अब कैसे भी बनती है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज ओजोनाइट। ओजोनाइट के अंदर तुमने जिंक और कॉपर डाला, दिस आयोडीन। ओके मैम आपने प्लस में क्या लिखा है? H2O। हाँ, जिंक और वाटर। मैम वो H2O2 है ना, पेरोक्साइड हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, बाई प्रोडक्ट बनते हैं H2O2, ऐड किया मैंने जिंक एंड वाटर। ओके मैम। Yes, Malini, tell me the product obtained. Ma'am, CH3. Ma'am, we will add ma'am, we will add oxygen on both the sides of the double bond. H3C, साथ में आगे C2H5, आगे Ma'am, double bond O. डबल बॉन्ड हो। आयुपेक नेम बताना, मनी प्लस पूरा बताओ। Ma'am, CH3 CH2 CH double bond O. CHO भी लिख सकते हो या C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, what is the IUPAC name of this compound? Ma'am, butane 2-on. Butane 2-on। Second का Ma'am, propanol. Propanol, yes, right. Just complete it. I am giving you 2 minutes break, फिर क्या पीरियड में लंबा लूंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो इसको। So I am giving you a 2 minutes break in between. 1 minute. I am just fixing the camera again. ये बेटा मैं ब्रेक अभी नहीं दे रही, मुझे एक गड़बड़ लग रही है कि मैं अपने फोन की ना शायद चार्जिंग करके नहीं लाई। तो जब तक क्लास चल रही है, आई एम कंटिन्यूइंग ओनली।
मैं देखती 2 मिनट रुक जाओ, मैं चार्जर देखती हूँ, मैं रखना भी भूल गई। Okay, I am continuing with the class without wasting time. जब तक चल रहा है, it's okay. Is the point clear? Now, in the next one, what I am going to do, अच्छा, अब मैं reverse question दे रही हूँ. I am changing the question. अच्छा, इस चीज देखिए, ध्यान से देखना. ये question ही देती हूँ. Question is, products of ozonolysis are. Reverse question है, products of ozonolysis are 2 molecules of propanol. Products of ozonolysis are 2 molecules of propanol. Write formula of starting alkene. Write formula of starting alkene. Products of ozonolysis are 2 molecules of propanol. Write formula of starting alkene. Okay. Now in this case, question आपका reverse form में करते हैं. You are given the products और आपको starting material बताना है, reactant बताना है. So what we are going to write is propanol. Propanol means CH3, CH2, CHO. ठीक है? Plus propanol. ये आपको प्रोडक्ट गिवन है. अब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे. रीअरेंज मीन जो CHO या ऑक्सीजन एटम्स हैं उनको पास पास लिखो. So instead of writing this as CH3, CH2, CHO, I am writing it in this way: CH3, CH2, CHO. Are you getting the point? Question was 2 molecules of propanol. This is CH3, CH2, CHO, CH3, CH2, CHO. I am writing in this way कि दोनों ऑक्सीजन एटम पास पास. अब जो स्टार्टिंग एल्कीन अगर आपको बनाना है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करो. दैट्स ऑल. इसमें भी यही था ना, दोनों ऑक्सीजन ऐड हुए थे, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके बीच में व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड इज अ डबल बॉन्ड. व्हाट आई एम गेटिंग इज CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH3. आप करके भी देख लो. अगर मैं इसमें जिंक और वाटर ऐड करूंगी, यहाँ से ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ. ठीक है? It means ozonolysis help in finding the position of double bond. It helps in finding the position of double bond. अगर डबल बॉन्ड से ये दोनों ऑक्सीजन मेरे ऐड हो जाएंगे, and what I am getting is this compound. Okay. Now second question is, if the products are butanol, butane-2-on and butanol. Now change your 2-methyl propanol. These are the products. Butane-2-on and 2-methyl propanol. What will be the formula of starting alkene? How to do it? Ma'am, 2-methyl propanol. Butane-2-on and 2-methyl propanol. What is the formula? आप कैसे लिखोगे? Butane-2-on क्या होता है? Ma'am, CH3. CH3, C double. ये होता है. ओके, पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं. मैं किधर लिख दूं? तो पहले मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ. जैसे ब्यूटेनॉल और 2-methyl propanol means CH3, CH, CH3, CH. These are the products. ये products. Now what I have told you, कैसे लिखेंगे हम इनको? We are going to write in such a way कि दोनों ऑक्सीजन एटम पास पास हो. ऐसे बोला लिखने को, दोनों ऑक्सीजन एटम्स पास पास हो.
तो हाउ कैन यू राइट दिस कंपाउंड? ये कार्बन है, ऑक्सीजन मैंने इधर दिखा दिया, इसका ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अब इस कार्बन के साथ कौन से दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं? इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मैंने इधर कर दिया, कौन से दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं बता सकते हैं? CH3 CH2। एक साइड है CH3 और एक साइड है CH2 CH3। Are you visible here? This is butane to what? 1, 2, 3, 4. So I am writing this compound in this particular way. ऑक्सीजन दोनों के पास पास होने चाहिए, तो इसकी ऑक्सीजन इधर। नाउ सेकंड कंपाउंड को मैं कैसे लिखूंगी? CHO पहले लिखूंगी, यानी ऑक्सीजन इधर प्लस CHO। इज इट ओके? पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया CHO, साथ में आ गया CH, CH3, CH3। Now what will be the starting alkene? हम बता सकते हैं? तो I am writing in such a way कि दोनों की ऑक्सीजन पास पास है। Any doubt you can ask? No, ma'am. Ma'am, the right side of the board is not visible. Okay, visible? No, ma'am, the tap is obstructing it. Pardon? Ma'am, it's not visible because of the tap. अच्छा, टैप आ रहा है अभी भी? Till the tap is coming? No, ma'am. Okay. Is it visible? I think no. And is the question clear to all of you? Or do you want more example? अच्छा, स्टार्टिंग एल्कीन कैसे लिखेंगे? मैं कैसे लिखूंगी? ये दोनों ऑक्सीजन को मैंने रिमूव कर दिया। टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ स्टार्टिंग एल्कीन, हाउ टू राइट? पहले मैंने इसको इस वे में लिखा, अब मेरे को क्वेश्चन स्टार्टिंग एल्कीन ढूंढना है, तो आई एम रिमूविंग दीस टू ऑक्सीजन एटम्स। So if I am removing these two oxygen atoms, by product starting material will be this compound. इसको मैं रख कर रही हूँ। CH3, CH2, CH3 को मैं C2H5 भी लिख सकती हूँ, C5 bond, double bond, CH, CH, CH3, CH3. I have named 1, 2, 3. 1, 2, 3. So numbering, I will give preference to the double bond also. While giving number, मैं यहाँ से दूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 means hex, 3 in. और 2 और 4 पे dimethyl. 2, 4 dimethyl X2E. So this is the formula, and if you are doing the ozonolysis of this compound, what I am getting is this. Question can come in any of the ways. Clear? बाकी रेट सारे कल रिवीजन में लूंगी, इसकी और एग्जांपल्स आई विल टेक। हम हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी है इसमें कंपाउंड में नेमिंग में? क्या चीज? हम नेमिंग की है जब आपने लास्ट में, तब हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको दी है? देखो यहाँ से अगर मैं नेमिंग करती 1, 2, 3, डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला, लेकिन यहाँ से अगर करें 1, 2, 3, यहाँ से भी डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिला, लेकिन CH3 को यहाँ पे नंबर क्या मिल रहा? 2। तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो we also want to give preference to the double bonds, to the side chains. तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे CH3 को मिलता है 3 नंबर। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती 1, 2, 3, यहाँ पर CH3 को कौन सा नंबर मिला? 3। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबर करें 1, 2, 3, तो CH3 को भी शॉर्टेस्ट नंबर मिला, डबल बॉन्ड को तो 3 ही नंबर मिला। So I am doing the numbering in this way. Okay, 6 carbon atoms in the longest chain. This is my longest chain. और सेकंड पे और फोर्थ पे आपका है मिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल X2E. Next reaction is polymerization.
एल्कीन्स पढ़ते हुए थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम एल्काइंस कर लेते हैं तो सारे रिएक्शन दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। एल्काइंस बहुत इजी है एक्चुअली में टॉपिक। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल करा रहे हैं इसको बहुत। पॉलीमराइजेशन सिर्फ भी ज्यादा नहीं करना। अच्छा, आपको मालूम है ना पॉलीथीन? व्हाट इज पॉलीथीन? व्हाट इज पॉलीथीन? क्या यूज करते हैं पॉलीथीन? देखिए सबने पॉलीथीन देखिए। यस मैम। सबको मालूम है? यस मैम। केमिस्ट्री की टर्म से हाँ सबको मालूम है पॉलीथीन बैग्स। केमिस्ट्री की टर्म से पॉली मींस पॉलीमर, अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इथीन, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज इथीन? व्हाट इज इथीन? व्हाट इज इथीन? मैम C2H4। C2H4 डबल बॉन्ड CH2 C2H4। तो पॉलीथीन का क्या मतलब है? लार्ज नंबर, पॉली मींस लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर। तो n का मतलब n can be 1000, more than 1000. So if a large number of ethene molecules are combining together, और addition reaction है, it is a type of addition reaction जिसमें आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है? तो what we are getting is polythene. बहुत सारे CH2 CH3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए। अब देखो एडिशन रिएक्शन में अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, इससे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, तो आपको बताया कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है? So these are addition reaction in which the large number of ethene molecules are combining together, and what we are getting is the polythene. So this is called as polymerization. अब इसे हम जनरल याद करते हैं, कुछ आपको भी कंडीशन याद नहीं करनी। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। कैटलिस्ट you don't have to remember high temperature and pressure, ठीक है? तो polymerization occurs and what we are getting is polythene. और ये रिएक्शन किसका होता है? एडिशन across our double bond. Now, if I am taking this compound, what is this compound? Can you tell the Ayurvedic name of this compound? Longest chain use करके. What is the Ayurvedic name of this compound? बोलो. Longest chain में how many carbon atoms? 3. 3. 1, 2, 3. क्या होगा नाम? Propene. 1 in. 1 लिखो या नहीं लिखो? Propane. Now, if I am doing the same conditions, if I am taking this catalyst, temperature and pressure, I can. अच्छा, मैंने क्या किया? क्योंकि एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड के क्रॉस होते हैं, बस मैंने वो कार्बन एटम ऊपर लिखे जिसमें डबल बॉन्ड है, बाकी सब नीचे कर। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। सेम वे में व्हाट वी आर गेटिंग इज पॉलीप्रोपीन। जब भी मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, इसके क्रॉस एक और मॉलिक्यूल ऐड होगा, ओनली द डबल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन। एन का मतलब ये एक बना, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल, दे आर एडिंग अप। एंड ऑल ऑफ यू नो दिस पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, ऑल दिस पॉलीमर्स, दे आर वाइडली यूज्ड। जो हमारे प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं, सॉस बॉटल्स की, केचप की बकेट, जो भी बॉटल्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है? ऑल दीज आर मेड अप ऑफ दिस पॉलीमर्स, ठीक है? कुछ भी प्लास्टिक का सामान, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। मोर डिटेल्स आर नॉट देयर इन क्लास 11, 12 में पूरा एक चैप्टर है पॉलीमर्स का। So with this we have done alkynes. अच्छा, एल्काइंस की मैं प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में कराऊंगी, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज साथ साथ ले लूंगी, बिकॉज दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कीन्स, ठीक है? पहले मेरी सारी प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज हैं व्हिच आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कीन्स, आपका रीकैप के फॉर्म में आई एम टेकिंग। हम जब ये पॉलीप्रोपीन बना है तो इसमें सिर्फ CH CH2 मल्टीप्लाई हुआ है या CH3 जो लास्ट है मिथाइल वो भी इस तरह से? ये है एक और, इसके साथ एक और सेम ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इसके साथ और होते हैं, ठीक है? ओके मैम। First method of preparation is from calcium carbide. Preparation हो गई है, इसकी फटाफट करा दो। First method of preparation is from calcium carbide. Now calcium carbide is CaC2
and if ये आपको से 10th में reaction था, if I am adding water to it, what I am getting is C2H2, that is CH triple bond CH plus calcium hydroxide. Okay. So this is the first method of preparation from calcium carbide. अच्छा कैल्शियम कार्बाइड लैब में कैसे बनाते हैं मैं वैसे बता देती हूँ इंडस्ट्रीज में कैल्शियम कार्बाइड के अंदर मैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन लेती हूँ ना ये दोनों ऐड होकर हमारा क्या बना देते हैं कैल्शियम कार्बाइड और डिटेल्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड ओके so this is my first method अच्छा एक मिनट रुको एक सेकंड रुको मैंने उनको एक टेस्ट भेजना था 12th को मैं भूल गई जस्ट वेट तभी वो बार बार ना बच्चों के फोन आ रहे थे कि मैम आपने पेपर नहीं भेजा अच्छा मैं 12th को ना वी आर सेंडिंग द क्वेश्चन पेपर्स फॉर प्रैक्टिस में उनसे आंसर्स मंगाते हैं ओके okay now in the first property first preparation of the second method by dehydrohalogenation करते what is the meaning of dehalogenation dehydrohalogenation Ma'am, removal of halogens, ma'am, and hydrogen. Removal of dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen from vicinal dihalides. Now vicinal means they two are adjacent. So if I am taking this compound and I am reacting it with alcoholic fluid, तो यहाँ से Cl और H first step में alcoholic OH आपको उसमें कराया था minus HCl. alcoholic OH के साथ क्या रिमूव होता है HCl. तो एक से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक से Cl. So what we are getting is CH2 double bond CH first step. Now generally to remove second molecule instead of what we are taking is soda amide NaNH2. First step में मैंने एक alcoholic OH डाला dehydrohalogenation और beta elimination reaction take place. एक से आपका हाइड्रोजन और दूसरे वाले से हैलोजन. अब दूसरे में मैं alcoholic OH भी डाल सकती हूँ but what I prefer is soda amide. Generally आपको NaNH2 मिलेगा. तो यहाँ से फिर दोबारा minus HCl रिमूव कैसे? इससे Cl और साथ वाले से क्या रिमूव हो गया H. So what I am getting is CH triple bond CH. Ma'am, the board is not visible. Yes. On the right side of the board. मैम पाइप से चुभ रहा है. यहाँ लिख दो मैं नीचे लिख दो फोन नहीं ला रही. NaNH2 in the presence of HCl रिमूव हो गया. ठीक है तो बॉन्ड या सिंपली NaNH2 ऐड किया तो यहाँ से Cl और यहाँ से H तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl इज रिमूव. मैम विजिबल एंड हाइलाइट कौन से होता है?
विसिनल मीन्स एडजेसेंट, विसिनिटी मीन्स एडजेसेंट। जिस कार्बन के साथ हेलोजन तो साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन अटैच, ठीक है मैम सेम होने चाहिए ना? इट कैन बी डिफरेंट। हमने डाई हैलाइड मींस एनी टू हेलोजन, दे कैन बी सेम और डिफरेंट। ओके मैम। ओके ये वाला फिर से समझाना, समझ में नहीं आया। क्या चीज? मैम ये मेथड फिर से समझाना, मुझे समझ में नहीं आया। ओके दोबारा से पूरा करके दिखा देते हैं। विसिनल का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट कार्बन एटम्स। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझा दूं। जैसे अगर मेरा ये है, नाउ दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. फर्स्ट स्टेप में आई एम रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक क्लोरीन। तो किसी का भी हेलोजन, अगर सपोज इसका हेलोजन रिमूव हो गया तो साथ वाले का क्या रिमूव होगा? इससे नहीं हो पाएगा ये। तो ये ले लो, सेम एग्जांपल ले लो। अगर इसका हेलोजन रिमूव हो गया तो साथ वाले का क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? CH, नीचे आ गया Cl, डबल बॉन्ड CH2। यस और नो? यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने एक और HCl, यहाँ पर HCl रिमूव हो गया। अब सेकंड स्टेप में अगर मैं एक और HCl रिमूव करें तो कैसे रिमूव होगा? इसका Cl और साथ वाले का क्या रिमूव हो गया? H। तो व्हाट आई एम गेटिंग? CH, CH। अब कार्बन तो 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, पहले 2 बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के 4 हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ और एक ट्रिपल बॉन्ड। So what I am getting is CH triple bond CH। और सेकंड स्टेप के लिए आइदर वी कैन टेक दिस अल्कोहलिक KOH, हम ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप लेते हो NaNH2। NaNH2 जनरली हम लेते हैं इंस्टेड ऑफ अल्कोहलिक KOH, and this NaNH2 is called as soda amide। ओके Ma'am. यस मैम फर्स्ट केस में Cl और H किसी भी कहीं से भी रिमूव हो जाए, कहीं से। अगर मैंने आपको ये दिया ना, देखिए इसके अलावा कोई एग्जांपल एक्चुअली पॉसिबल नहीं था, तो आपको क्या होगा? कहीं से भी, यहाँ से अगर Cl हो गया, यहाँ से हो गया, एक ही बात है। सेकंड स्टेप में दूसरा Cl रिमूव हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कहीं से भी आप रिमूव कर दो, इट डजंट मैटर। एक से Cl होगा तो साथ वाले से H रिमूव होगा, दैट्स इट। मैम विसिनल डाइहैलाइड्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। विसिनल होता है अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, दोनों के साथ Cl अटैच है। जैसे ये एग्जांपल, ये मेरा विसिनल है। विसिनल मींस इस कार्बन के साथ साथ वाले के साथ भी Cl अटैच, दोनों कार्बन एटम साथ साथ होने चाहिए। ये जैसे मेरा विसिनल है, लेकिन अगर मैं ये लूंगी, ये कंपाउंड मेरा विसिनल है क्या? इज दिस विसिनल? नहीं, ये कार्बन के एडजेसेंट तो ये है, ये नहीं है विसिनल जैसे कार्बन एटम्स। क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले एडिशन रिएक्शन करा रही हूँ और एक जनरल वे में करा रही हूँ, अलग-अलग पूरी डिटेल्स नहीं करा रही। Now suppose I am taking this compound CH3C triple bond CH। Now if I am taking this HCl add करो पहले, first step। second add करो HBr plus peroxide। थर्ड स्टेप में वाटर, सोचो क्या चलेगा। फोर्थ स्टेप में हेलोजन। कौन बताएगा? एक ही करके बताना, एक सारे एक ही बच्चा चारों नहीं बताएगा। फर्स्ट वन HCl add के which will follow? सिद्धार्थ जैन, you tell the answer। कुछ नहीं बताया आज। Which will be followed while we are adding HCl? Markovnikovs or anti-Markovnikovs? वंशिका, अरुमिता, Markovnikovs। हाँ अरुमिता बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेकंड वाला दिशिका बताएगी HBr plus peroxide। यस अरुमिता, टेल मी द आंसर। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? मैम हाइड्रोजन CH में ऐड होगा।
Okay, so what will be the product? First step में CH3 C यहाँ पर होगा CH3 C Cl single bond sorry double bond CH2. ठीक है। अब अगर इसमें एक और ऐड होगा तो कैसे बनेगा? अगर HCl एक्सेस में है एक और ऐड होगा तो क्या बनेगा बोलो? यहाँ कितना प्रोडक्ट? ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है यहाँ तक? मैम एक बार रिपीट करना। अगर इसमें एक और HCl होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और कितना? HCl एक और ऐड होगा तो भी सेम होगा। जहाँ पर Cl था वहीं एक और Cl ऐड होगा। तो what I am getting is CCl single bond CH3. Is it okay? First step में एक HCl ऐड होगा। We are getting this as a product. इसमें एक और HCl ऐड होगा तो जहाँ Cl था वहीं CH ऐड होगा दूसरे पे CH3. HBr plus peroxide. Now who is going to tell? Someone else? Dishita. HBr plus peroxide. Ma'am, can I? Ma'am, Hmm. I might be wrong, but कोई बात नहीं. ma'am, From CH3 CH yes, very good. double bond CH Br. Yeah, very good. एक और मॉलिक्यूल ऐड करो इनसे. Ma'am, then CH3 CH2 CH Br plus. Br दो Br आ गए. ठीक है. वाटर या पहले क्लोरीन वाला बताओ. वाटर की जगह पहले क्लोरीन वाला बताओ. क्या होगा? जल्दी बोलो कोई भी. एक बॉन्ड ब्रेक हो गया. One chlorine will add here, one will add here CH3CCl double bond CHCl. नेक्स्ट बता दो. ऐसे ही हुआ ना. क्लोरीन मींस एक क्लोरीन एक इधर ऐड हो गया एक इधर ऐड हो गया. एक और ऐड करो. CH3CCl double bond CHCl2. CH3CCl को ऐसे नहीं लिखते ऐसे लिखाते हैं ClCl. कार्बन के बॉन्ड दिखाओ. ठीक है. सिंगल बॉन्ड CHClCl. ओके. मैम वो विजिबल नहीं हो रहा पार्ट जो भी लिखा है. पार्ट विजिबल नहीं हो रहा. मैं करती हूँ उसको चेंज. अब देखो बस इतना इससे देखना. अब विजिबल है. देखो कहाँ से विजिबल है. मैं वहीं रोक दूँ. हम अब है. अब है. ओके जस्ट वेट. अभी भी है. देखो एक बार ये पोर्शन बस देखना है. विजिबल है ना? मैम वो राइट साइड वाला कट गया थोड़ा सा. अब देखो. अब विजिबल है. मेरा पूरा टॉप नहीं visible Ma'am, है. now upper board is not visible. अरे अपर पे क्या करना है? हाँ, बस ठीक है, ये पोर्शन देखो करा दो. ये दिख रहा है ना? Yes, ma'am, it's visible now. Now if I okay. Now if I am going to add is water. Water means H plus and OH minus. How they are going to add? Water. Markovnikov's rule कैसे ऐड होगा? कहाँ पर H आएगा? CH3 C double bond CH. कहाँ H आएगा? कहाँ OH आएगा? C पर OH आएगा और CH पर H. ये आ गया. और जनरली अब इस रिएक्शन के लिए व्हाट आई एम टेकिंग इज अ पॉइजन. पॉइजन हम लेते हैं मर्क्यूरिक Hg2+ दैट इज मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 in the presence of HCl. HClH2SO4. ठीक है. मर्क्यूरिक सल्फेट in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड कर लो H2SO4. तो यानी जब हमने पॉइजन लिया तो मर्क्यूरिक सल्फेट से बन गया Hg2+ और H+. ठीक है. अब इस रिएक्शन के साथ क्या होता है? द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर एडिंग वन मॉलिक्यूल. दिस इज अ पॉइजन. दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड नहीं होने देता है. द रिएक्शन विल स्टॉप. Okay, now what happens? इसमें स्पेशल टाइप की
आइसोमेरिज्म हो जाती है, मैंने आपको कराई हुई थी टॉटोमेरिज्म और कीटो इनॉल। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म का मतलब जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसी के साथ OL, ये OL मींस अल्कोहल, तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म। ये मेरे ख्याल से मैंने कराया था प्रीवियस चैप्टर में, अगर बुक में था नहीं तो अभी बता रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म। अब नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ से आपको ये ऑक्सीजन के लोन पे इधर चले जाएंगे, रेजोनेंस हो गई ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H भी हट जाएगा, ये वाला H भी हट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये हाइड्रोजन हट के कहाँ गया, इस साइड, ये फॉर्म होते कीटो फॉर्म। दोबारा देखो, यहाँ समझा देती हूँ। अगर आपका ये था OH, व्हाट आई एम सेइंग, ये हाइड्रोजन तो हट गया, ये हाइड्रोजन हट के कहाँ गया, इधर आ गया, तो हमारे पास आ गया CH3C, यहाँ आ गया CH3। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है इसे यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड O CH3। So this is a type of isomerism which is called as tautomerism. Isomerism and tautomerism. This is called as tautomerism. Okay, I think it's sufficient for today. मेरे फोन की चार्जिंग 2% रह गई है. Okay, you can leave. आरुणि मैम से मैंने बात करी थी, फिजिक्स क्लास will start at 11:45 ताकि तो केमिस्ट्री की देर पड़े ना, you will get a break. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, you can leave.